السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کو کس بیماری میں مبتلا کیا گیا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری میں مبتلا کیا گیا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی کن لوگوں کے حکم پر چھوڑ دی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی فرشتوں کے حکم پر چھوڑ دی تھی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو منتخب کیا گیا۔ سوال: اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال: وہ کون سا فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب: زکوٰۃ فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے۔ سوال: تیمم جن اشیاء سے جائز قرار دیا گیا ہے ان کی تفصیل بتائیے۔ جواب: پاک صاف مٹی، اینٹیں، پتھر، چونا، ریت، کنکر، سنگ مرمر، عقیق اور فیروزہ سے تیمم جائز قرار دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار کہاں ملے تھے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار دریائے اردن پر ملے تھے۔ سوال: کیا بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: قرآن حکیم کے مطابق بنی اسرائیل کتنے عرصے تک وادی سینا میں بھٹکتے رہے؟ جواب: قرآن حکیم کے مطابق بنی اسرائیل 40 سال تک وادی سینا میں بھٹکتے رہے۔ سوال: کون سا مذہب ہے جس کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے؟ جواب: اسلام کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے۔ سوال: پورا قرآن کتنے برس میں نازل ہوا؟ جواب: پورا قرآن 23 برس میں نازل ہوا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ دیمک تمام معاہدہ تحریر کو چاٹ گئی ہے، صرف ایک جگہ باقی ہے، بتائیے اس ایک جگہ کا کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ دیمک تمام معاہدہ تحریر کو چاٹ گئی ہے، صرف ایک جگہ باقی ہے، اس ایک جگہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ سوال: وہ کون سی فرض نماز ہے جو کچھ ٹائم کے لیے فرض نہیں ہے؟ جواب: وہ فرض نماز جو ایک نابالغ پڑھتا ہے اس پر اس وقت تک فرض نہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ سوال: کس صحابی کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے تھے۔ سوال: اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلانے کا حکم کس نے دیا؟ جواب: اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلانے کا حکم طارق بن زیاد نے دیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پتھر کی تختیاں دی تھیں ان پر کیا تحریر تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پتھر کی تختیاں دی تھیں ان پر توریت کا احکامات تحریر تھے۔
सवाल, शाह नजाशी के दरबार में किसने तकरीर की? जवाब, शाह नजाशी के दरबार में हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह अन्हो ने तकरीर की। सवाल, हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं? जवाब, हज के दौरान 3 खुतबे होते हैं। सवाल, खंदक की खुदाई के दौरान क्या चीज आ गई थी जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा? जवाब, खंदक की खुदाई के दौरान चट्टान का टुकड़ा आ गया था जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा। सवाल, सूरह यासीन क़यामत के दिन किस चीज से बचाएगी? जवाब, सूरह यासीन क़यामत के दिन प्यास से बचाएगी। सवाल, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के अक़द के बाद वलीमा किसने किया और क्या खिलाया? जवाब, बाज़ रिवायत से पता चलता है कि इजाब कबूल के बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक गाय ज़िबा कराई और खाना पकवा कर मेहमानों को खिलाया। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किन से हुआ? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से हुआ। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाहिद सगे भाई का क्या नाम था? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाहिद सगे भाई का नाम बनियामिन था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह का खुतबा किसने पढ़ा था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा था। सवाल, कुरान मजीद में दुआ मांगने की ताकीद कितनी मर्तबा आई है? जवाब, कुरान मजीद में दुआ मांगने की ताकीद 70 मर्तबा आई है। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरा अरब के अलावा किस मुल्क का सफ़र किया? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरा अरब के अलावा मुल्क शाम का सफ़र किया। सवाल, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया कराम की तादाद कितनी थी? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया कराम की तादाद 1,24,000 थी। सवाल, कोई नबी किसी का शागिर्द नहीं हुआ, लेकिन वो कौन से नबी हैं जो दूसरे नबी के शागिर्द हुए? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप इल्म इसरार व तरकीब हासिल करने के लिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए। सवाल, हज़रत मारिया कप्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा का बतिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा बेटा पैदा हुआ? जवाब, हज़रत मारिया कप्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बतिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हो पैदा हुए। सवाल, जन्नतुल फिरदौस के कितने दरवाजे हैं? जवाब, जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजे हैं। सवाल, क्या आपको मालूम है रूह को पहले पैदा किया गया या जिस्म को पहले पैदा किया गया? जवाब, इब्ने हज़म फरमाते हैं कि इस पर अजमा है कि पहले रूहें पैदा की गईं। सवाल, वो कौन सा फल है जिसमें जन्नत के दानों में से एक दाना डाला जाता है? जवाब, अनार वो फल है जिसमें जन्नत के दानों में से एक दाना डाला जाता है। सवाल, आपको मालूम है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत कत्ल हाबिल के कितने अरसे बाद हुई?
जवाब, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत कत्ल हाबिल के 5 साल बाद हुई। सवाल, किस सहाबी ने हज़रत जिब्राइल को इनकी असल शक्ल में देखा? जवाब, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असल शक्ल में देखा। सवाल, अल्लाह पाक सारे गुनाह को माफ़ कर देंगे मगर एक गुनाह ऐसा है जिसको क़यामत के दिन माफ़ नहीं करेंगे, बताएं वो गुनाह क्या है? जवाब, जिसने किसी को अल्लाह के साथ शरीक किया हो यानी शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं करेंगे। सवाल, इशा की नमाज के बारे में क्या हुक्म है? जवाब, इशा की नमाज के बारे में हुक्म है कि जब मगरिब में आने वाली सुर्खी बिल्कुल मिट जाए। सवाल, अंसार ने सबसे पहले कौन से ग़ज़वा में शिरकत की? जवाब, अंसार ने सबसे पहले ग़ज़वा बदर में शिरकत की। सवाल, अरबी लफ्ज़ सूरत के क्या माने हैं? जवाब, अरबी लफ्ज़ सूरत के माने मुकम्मल कर लेने को और रिफ़त और अज़मत के भी हैं। सवाल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के कितने लुक़मे खाया करते थे? जवाब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के 7 या 9 लुक़मों से ज़्यादा नहीं खाया करते थे। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले क्या तामीर किया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले खाने काबा को तामीर किया था। सवाल, ग़ज़वा औद में किस सहाबी ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों जान दी? जवाब, ग़ज़वा औद में हज़रत ज़ैद बिन सकीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जान दी। सवाल, मुर्गी की गर्दन खाने से कौन सी खतरनाक बीमारी लग जाती है? जवाब, मुर्गी की गर्दन को चूस कर खाने वालों में रूहानी, जिस्मानी और जहनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं क्योंकि मुर्गी की गर्दन को चूसना या चबा कर खाना इंसान को जज्बाती बना देता है और यूं ही ये इंसान खुद को अपने ही जज्बात के हाथों तबाह कर लेता है क्योंकि ब्रायलर मुर्गी की नशोनुमा के दौरान इसे इंतहाई नामुनासिब खुराक दी जाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इन मुर्गियों को खून और मुर्दा मुर्गियों की बकायात खिलाई जाती है। इनकी खुराक में खंजीर और दूसरे जानवरों के हिस्से शामिल किए जाते हैं, इसलिए ख़ास तौर पर मुर्गी की गर्दन को कोशिश करें कि ना खाएं क्योंकि मुर्गी के गले में जो गोश्त होता है वो बीमारी की बुनियाद होता है। सवाल, अल्लाह ताला किस गुनाहगार को पसंद करता है? जवाब, अल्लाह ताला तौबा करने वाले नौजवान को पसंद करता है। सवाल, कौन सी बुराई अगर ज़रा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब, गरूर और तकब्बुर अगर ज़रा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। सवाल, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने किसके मशवरे से बिमा अहलो अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया? जवाब, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के मशवरे से बिमा अहलो अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलुल मरसल का लफ्ज़ किस नबी के लिए इस्तेमाल किया? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल अल मरसल का लफ्ज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शैतान किस सूरत में दाखिल हुआ था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शैतान बूढ़े आदमी की सूरत में दाखिल हुआ था।
سوال: سب سے کم صورتیں قرآن کی کس منزل میں ہیں؟ جواب: سب سے کم صورتیں قرآن کی پہلی منزل میں ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔